Okay, welcome to next lecture. So continues our last topic. Ready? क्या था? Circum radius or in radius, capital R and small r. So related to that example, continue. A cot A plus B cot B plus C cot C equal to 2 r plus r, small r plus capital R. Capital R is a circum radius and small r is a in radius. Okay. So A cot A plus B cot B plus C cot C. लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया है. A 2r sin A लिख सकते हैं. यस. cot A cos upon sin, B 2r sin B, cot B cos upon sin, plus C 2r sin C, cot C cos upon sin. तो यहाँ से sin A कैंसिल, sin B कैंसिल, sin C कैंसिल. देखो तीनों में 2r है, उसको बाहर बुला लो. cos A बचेगा, cos B बचेगा, cos C बचेगा. cos A plus cos B plus cos C. इस चैप्टर में क्या होता है? 1 plus small r by capital R, 1 plus small r by capital R. R से मल्टीप्लाई कर दो. R into 1 is R into small r by capital R cancel, so plus small r. So ये है हमारी right hand side. Ready? Okay, next. B square minus C square upon 2AR equal to sin B minus C. तो मैंने यहाँ से right hand side से start किया. Ready? ये थोड़ा tough हो जाएगा बनाने के लिए. So sin B minus C sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. Ready? Sin B cos C minus cos B sin C. तो sin B का फॉर्मूला B upon 2R sin फॉर्मूला, cos C का फॉर्मूला a square plus b square minus c square upon 2ab minus cos B का फॉर्मूला a square plus c square minus b square upon 2ac into sin C का फॉर्मूला c by 2r. तो देखो b कैंसिल, c कैंसिल, बचेगा क्या दोनों में 4ar. तो 4ar एलसीएम ले लिया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, बीच में माइनस है इसलिए. सो माइनस a square minus c square plus b square, a square कैंसिल, b square plus b square 2b square minus c square minus c square minus 2c square upon 4ar. तो यहाँ से 2 कॉमन निकल के इसके साथ कैंसिल, बचेगा क्या? b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2a. तो वो क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी हाँ लेफ्ट हैंड साइड है हमारी. रेडी? नेक्स्ट. a cos a plus b cos b plus c cos c अपॉन a plus b plus c इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R. तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर स्टार्ट किया है और abc जहाँ पे दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो a की जगह पे 2r sin है, b की जगह पे 2r sin b, c की जगह पे 2r sin c. सिमिलरली डिनोमिनेटर में. रेडी? तो ऊपर से जो है वो r कॉमन ले लिया. 2 sin a into cos a, 2 sin theta into cos theta, sin 2 theta means sin 2a, 2 sin b into cos b, sin 2b, 2 sin c into cos c, sin 2c. 2r कॉमन, sin a plus sin b plus sin c. अब देखो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में सम किए थे कि जब a plus b plus c पाई हो, रेडी, a plus b plus c पाई हो, तब sin 2a plus sin 2b plus sin 2c वो होता है 4 sin a into sin b into sin c और sin a into sin b into sin c. तो वो सब मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सब आपको रिमेंबर रखने हैं, यूज होगा आगे जाके. sin a plus sin b plus sin c अगेन, तो वो होगा 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2. चलो 4 कैंसल. sin a को sin 2 थीटा 2 sin थीटा into cos थीटा, तो sin a क्या होगा उसका हाफ एंगल 2 sin a by 2 into cos a by 2. तो sin a 2 sin a by 2 into cos a by 2, sin b 2 sin b by 2 into cos b by 2, sin c 2 sin c by 2 into cos c by 2. तो यहाँ से cos a by 2 cos a by 2 कैंसिल, cos b by 2 b by 2 कैंसिल, cos c by 2 c by 2 कैंसिल, बचा क्या? 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 बचा, sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. और ये क्या है? मैंने रिजल्ट आपको लिखवाया था फर्स्ट में, स्मॉल r by कैपिटल R, 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. रेडी? राइट हैंड साइड. Next question. A equal to 1, a plus b plus c equal to 2 sin a plus sin b plus sin c. तो मेजर एंगल a equal to dash. तो यहाँ से स्टार्ट किया a plus b plus c equal to 2 sin a plus sin b plus sin c. तो sin a क्या है? a upon 2r. sin b क्या है? b upon 2r. sin c क्या है? c upon 2r. तो यहाँ से 2r कॉमन निकल के 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 upon r बचेगा और ब्रैकेट में बचेगा a plus b plus c. तो दोनों साइड a plus b plus c कैंसिल, r कितना आएगा? 1. अब साइन फॉर्मूला के हिसाब से a अपॉन sin a कितना होता है? 2r. a इक्वल टू 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2r कितना मिला? 1. सो 2 1 जा 2, 2 यहाँ आने दो, sin a वहां जाते तो sin a कितना हो जाएगा? 1/2. a कितना मिलेगा? 5/6. रेडी? तो बहुत ही सिंपल है, नोट डाउन करिए. Okay, next question. A is to B is to C is 3 is to 7 is to 8. Then R is to R is equal to blank. So A equal to 3x, B equal to 7x, C equal to 8x. रेशियो में तो ऐसा लिख सकते हैं. Yes.
ओके चलो r बाय r चाहिए तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, देखो cos a plus cos b plus cos c इक्वल टू 1 प्लस r बाय r। तो कहीं से अगर cos b cos c फाइंड कर ले, cos a cos b और cos c, तो ये मिल जाएगा रेशियो। तो यहाँ से cos a का फॉर्मूला लगा दिया, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में से स्क्वायर अपन 2bc, तो bca इसका स्क्वायर सब यहाँ पे रख दो, अपन 2bc रख दो, सॉल्यूशन करो, देखो x स्क्वायर कॉमन निकल के इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो x बचेगा ही नहीं, वैल्यू ही आ जाएगी डायरेक्ट। सो इसका सॉल्यूशन करोगे आपको 13/14 मिलेगा। सिमिलरली cos की a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन 2ac, वहां पे भी a b c की वैल्यू रख दो, सॉल्यूशन करो, आंसर मिलेगा 1/2। cos c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन 2ab, सब कुछ यहाँ पे रख दो और सॉल्यूशन करो, आपको आंसर मिलेगा -1/7। रेडी? ओके चलो, cos a plus cos b plus cos c इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। तो cos a cos b cos c की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास, रख दो यहाँ पे 1 प्लस r बाय r। कितना एलसीएम आएगा 14। रेडी? यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, 7 1 जा 7 माइनस 2 1 जा 2, तो 13 प्लस 7 इज 20 माइनस 2 18/14, 1 प्लस स्मॉल r बाय r। 1 को इस साइड सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा 9/7 माइनस 1, कितना हो जाएगा 2/7 स्मॉल r बाय कैपिटल r, लेकिन हमें चाहिए कैपिटल R बाय स्मॉल r, तो उल्टा कर दो 7/2, रेशियो कितना हो गया 7:2। रेडी? बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेडी? छोटा सा और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हमारे पास ट्रायंगल है ABC। रेडी? उसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी एंगल से उसकी ऑपोजिट जो साइड है उसमें अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, रेडी, तो ये बन जाता है एल्टीट्यूड। जैसे कि हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, रेडी, राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे होता है, तो हम क्या करते हैं, वो ऊपर वाला जो एंगल है उससे नीचे वाले एंगल पे परपेंडिकुलर ही है, इसलिए उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। रेडी? सो ये एल्टीट्यूड है और ए में से एल्टीट्यूड है, इसलिए एक एल्टीट्यूड का कैपिटल है और स्मॉल है किसका, ए में से, इसलिए बी में से भी आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो एसी पे, और सी में भी ड्रॉ कर सकते हो कहां पे, एबी पे। ओके, तो एल्टीट्यूड तीन होते हैं। फिर नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर, वो भी तीन होते हैं। कैसे? एंगल बाइसेक्टर में ये जो भी एंगल है, अगर ये 120 है तो बीच में से आप पार्ट कर दो 60 60 दोनों साइड, और जो लाइन ड्रॉ की है वो है एंगल बाइसेक्टर। अगर यहाँ पे ये एंगल टोटल 90 डिग्री है तो 45 डिग्री पे मैं अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं तो बी का एंगल बाइसेक्टर हो गया। यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो सी का एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो बाइसेक्टर का बी और ए में से ड्रॉ किया इसलिए स्मॉल है, बी ए बोलते हैं। अगर यहाँ से ड्रॉ किया होता तो बी बी। रेडी? नेक्स्ट मीडियन। मीडियन क्या है? तो BC का मिड पॉइंट P है। BC का मिड पॉइंट क्या है? P। तो P को अगर A के साथ कनेक्ट कर दूं तो ये हो गया मीडियन। रेडी? किसका मीडियन? A में से ड्रॉ किया हुआ मीडियन मींस मीडियन ऑफ A। अगर यहाँ AC का मिड पॉइंट B के साथ कनेक्ट कर देता तो ये मुझे मीडियन ऑफ B मिल जाता MB। सिमिलरली AB का मीडियन यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता और C के साथ कनेक्ट कर देता तो मीडियन ऑफ C मिल जाता मुझे। रेडी? तो तीन एल्टीट्यूड होते हैं, तीन एंगल बाइसेक्टर होते हैं और तीन क्या होता है, मीडियन। रेडी? तो यहाँ पे सबकी लेंथ कैसे फाइंड करते हैं वो फॉर्मूला है। जैसे कि ए मींस एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, उसकी लेंथ कितनी होगी 2 डेल्टा बाय ए। डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल और स्मॉल ए हमें पता है ये वाली साइड का मेजरमेंट होगा। सो 2 डेल्टा बाय ए। अगर बी में से एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया उसका मेजरमेंट चाहिए तो 2 डेल्टा बाय बी। सी में से जो ड्रॉ किया उसका मेजरमेंट चाहिए तो 2 डेल्टा बाय सी। रेडी? ऐसे तीन फॉर्मूला 2 डेल्टा बाय ए, 2 डेल्टा बाय बी, 2 डेल्टा बाय सी। सिमिलरली बी बाइसेक्टर फ्रॉम ए, बाइसेक्टर ए में से ड्रॉ किया उसकी लेंथ 2bc cos a by 2 upon b plus c। अगर बोलते कि भाई बी में से ड्रॉ किया हुआ बाइसेक्टर चाहिए तो 2ac cos b by 2 upon a plus c। रेडी? तो सिमिलरली इसके जैसे हम दो और फॉर्मूला बना सकते हैं। Similarly, MA median from A उसकी लेंथ 1/2 under root 2b square plus 2c square minus a square under root 2b square plus 2c square minus a square। अगर MB B से ड्रॉ किया हुआ मीडियन की लेंथ चाहिए 1/2, देखो A में से था तो माइनस a स्क्वायर ये था, उन दोनों का स्क्वायर का 2 टाइम एडिशन कर दिया था। तो A B में से चाहिए तो क्या करेंगे 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। रेडी? अगर C में से चाहिए तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो ऐसे दो और फॉर्मूला बनेंगे इसके अलावा। रेडी? सबके दो टोटल 9 फॉर्मूला हो गए। रेडी? तीन यहाँ पे दिए हुए 6 अदर फॉर्मूला होंगे, वो आप लिख सकते हो अभी। और एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे कि mA स्क्वायर प्लस mB स्क्वायर प्लस mC स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर करो
एम बी मैंने जो बोला अभी लिखना है उसका स्क्वायर करो, एम सी लिखना है उसका स्क्वायर करो और तीनों का एडिशन करोगे तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा 3/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। रेडी, ये कई बार यूज होता है, सो यहाँ पे लिखवा दिया है एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। एम क्या है? मीडियन ऑफ ए। रेडी, मीडियन ऑफ बी, मीडियन ऑफ सी। सो 3/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, चलो तो ये क्वेश्चन नोट डाउन करिए और ये जो इंपॉर्टेंट थियरी है वो नोट डाउन करिए, फिर इसके सम करके चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ओके, सो नोट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा गामा आर लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। रेडी, जो तीनों एल्टीट्यूड्स होते हैं ए में से, बी में से और सी में से, उसकी लेंथ क्या है? अल्फा बीटा एंड गामा। देन 1 अल्फा स्क्वायर 1 बीटा स्क्वायर 1 गामा स्क्वायर इक्वल टू ब्लैंक। सो अल्फा क्या होगा? ए में से जो एल्टीट्यूड होगा उसकी लेंथ क्या थी? हमने फॉर्मूला देखा था लास्ट में 2 डेल्टा बाय ए। सो अल्फा इज ए 2 डेल्टा बाय, बीटा इज ए 2 डेल्टा बाय बी एंड गामा इज ए 2 डेल्टा बाय सी। सो 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर 1 गामा स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर का उल्टा कर दो, a स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर। बस एलसीएम ले लो, 4 डेल्टा स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आंसर सिर्फ फार्मूला अच्छे से आना चाहिए कि 2 डेल्टा बाय ये होता है। ओके, नेक्स्ट सिमिलर अल्फा बीटा गामा अगर एल्टीट्यूड है तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 1 गामा क्या होगा? अल्फा 2 डेल्टा बाय a, सो a अपॉन 2 डेल्टा उसका उल्टा प्लस b अपॉन 2 डेल्टा माइनस c अपॉन 2 डेल्टा। 2 डेल्टा कॉमन है प्लस b माइनस c। इसमें थोड़ा करेक्शन किया होगा, प्लस c माइनस c, तो प्लस c माइनस माइनस 2c हो जाएगा और a प्लस b प्लस c 2s होता है। सो ये 2s माइनस 2c अपॉन 2 डेल्टा, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो तो लास्ट में क्या आंसर आएगा? s माइनस c अपॉन डेल्टा। ओके, चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है c इक्वल टू 5 है, a इक्वल टू 13 है, b इक्वल टू 12 है। तो पहले तो साइड अगर 5 12 13 दिया हुआ है तो क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, वो पता चल जाएगा। रेडी, सो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देन फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम a टू bc। a टू bc का लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड मींस क्या फाइंड करना है? 2 डेल्टा बाय a। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम a 2 डेल्टा बाय a फाइंड करना, डेल्टा चाहिए। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो डेल्टा क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 हाइट इनटू बेस, सो 1/2 b इनटू c। b कितना है? 12, c कितना है? 5, 12 50 60 अपॉन 2 30। ये डेल्टा आ गया। a एल्टीट्यूड ऑफ फ्रॉम a, उसकी लाइन 2 डेल्टा बाय a, 2 into 30 by 13, आंसर इज 60 by 13। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ AD BE and CF are median of triangle ABC then AD square plus B square plus CF square is to BC square CS square AB square equal to blank। तो अगेन AD क्या है? मीडियन है फ्रॉम A, सो उसको MA बोल सकते हैं हम। रेडी, मीडियन ऑफ A। BE क्या है? मीडियन है फ्रॉम B मींस MB CF MC। BC को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, CA को B से और AB को C से। रेडी, ये तो पता है हमें। और एक मैंने आपको लास्ट में नोट लिखवाई थी लास्ट में, एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर इक्वल टू 3/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आने दो। ए में है वो एडी है तो एडी स्क्वायर प्लस एम बी क्या है? बी स्क्वायर, एम सी क्या है? सी एफ स्क्वायर, ए क्या है? बी सी स्क्वायर, बी क्या है? सी एस स्क्वायर प्लस सी क्या है? ए बी स्क्वायर। तो इन दोनों का तो रेशियो चाहिए हमें, तो क्या होगा? 3:4। रेडी, तो इसलिए मैंने नोट लिखवाई थी कि कभी कभी ऐसा अगर एमसीक्यू आ गया तो हमें आना चाहिए। रेडी, सो नोट डाउन करिए। Okay, next and last two question. L is the length of median from A, then prove that 4L square plus A square plus 4BC cos A। अब A से मीडियन अगर आप ड्रॉ कर रहे हो A में, उसकी लेंथ क्या थी? 1/2 अंडर रूट 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। वो क्या है? अभी L है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। देखो 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे अलग आ गया 4L स्क्वायर इक्वल टू 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर है, देखो 4a स्क्वायर तो आ गया, फिर a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस किया आगे, पीछे माइनस कर दिया, सो 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। इसमें से 2 कॉमन निकालो, बचेगा क्या? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऐसा फॉर्म कहाँ पे आता है? cos a के फॉर्मूला में, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन 2bc। तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होगा? 2bc cos a। सो 2bc cos a रख दो, आपको मिल जाएगा आपका जो भी प्रूव करना था। रेडी, सो आ गया 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4bc cos a। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि इफ एबीसीआर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब देखो जब भी मैंने इसके पहले ही बोला है एबीसीआर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला है तो बीच वाला जो भी एंगल है वो π/6 मतलब π/3 होता है 60 डिग्री। रेडी, जो यहाँ पे प्रूव करके दिया 2b = a + p और a + c की जगह पे 2b रख के आपको b π/3 मिल जाएगा। रेडी, तो ये हर बार आपको रिमेंबर रखना है। ये जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है 2019 का। इतने स्टेप करने जाओगे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको छोटी छोटी बातें अगर रिमेंबर है तभी आप जेडब्ल्यू सॉल्व कर पाओगे। फिर a/b लिया मैंने, sin a/sin b, क्यों? क्योंकि मेरे पास देखो a/b है 1/√3 और एक एंगल है b = π/3, तो a एंगल मिल जाएगा मुझे। sin a कितना मिलेगा, sin b वहां पे चला जाएगा π/3 √3/2, √3/2 पे √3 कैंसिल होकर 1/2 बचेगा। सो a मुझे π/6 मिलेगा। ये π/3 60 डिग्री, ये π/6 30 डिग्री, तो c कितना बचेगा 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो मुझे उसके हाइट और बेस चाहिए, मींस a एंड b। चलो उसके लिए क्या किया मैंने, a/c लिया, क्यों? क्योंकि c दिया हुआ है। तो a/c = 2r sin a 2r sin c। a π/6 है, c कितना है π/2, तो ये हो गया 1/2, ये तो 1 हो जाएगा, सो 1/2 बचेगा। c 4 है, इसके हिसाब से a कितना आएगा 2। अब a = 2 यहाँ पे रख दो तो b कितना हो जाएगा √2√3 फ्रॉम इक्वेशन 1। रेडी, तो a भी मिल गया। अब डेल्टा 1/2 ab 1/2 a2 एंड 2√3, आंसर कितना हो जाएगा 2√3, 2 कैंसिल हो जाएगा। रेडी, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन भी आते हैं जेडब्ल्यू में। रेडी, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, बहुत इजी होता है, लेकिन हमें क्या होता है प्रैक्टिस करनी है जितनी भी हो सके। अब इजी क्वेश्चन में अगर ये सिंपल क्वेश्चन है और इसमें 3 मिनट आपके गवा दी तो आपका टाइम बहुत, जो टॉप क्वेश्चन है उसमें बचेगा। रेडी, अगर कम टाइम में हो गया तो यहाँ पे हमारा पूरा ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट होता है। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी पार्ट है वो सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारी ये चैप्टर की सीट है वो अगर आप देखोगे तो सारे जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आपको मैंने करवा दिए हैं। रेडी, ये चैप्टर ही ऐसा था इसलिए इसमें सारे सम मोस्ट ऑफ हो गए। 1-2 क्वेश्चन अगर कोई छूट गया होगा तो उसका हम डाउट सॉल्यूशन में कर लेंगे। ओके, बाकी सारे क्वेश्चन जो भी हमने लेक्चर लिए उसमें सीट के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ गए हैं। रेडी, प्रूव करके हो गए और वैसे वैसे आप देखिएगा। तो मैं जो आपको एक्सेप्टेशन है कि सारी सीट आप अपने आप सॉल्व करें। ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चन हो ही गए तो आपको आने चाहिए और जितना भी हो सका सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इजी चैप्टर है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आपको आने चाहिए। सो नोट डाउन एंड एंजॉय नेक्स्ट चैप्टर।